Next topic is kidney. There are two kidneys in our body. They are dark brown in color and are bean shaped. Two kidneys in our human body, dark brown in color and have bean shape. It is located in the one side of the abdomen, on the other either side of the vertebral column. Kidneys are enclosed by thick membrane. किडनी एक थिक मेम्ब्रेन, उसके आगे पूरी एक थिक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं रेनल कैप्सूल. Ureters, it is a tube-like structure. This one is a tube-like structure which arises from the kidney and open it into the urinary bladder. जो यहाँ से किडनी से निकली यूरेटर दो ट्यूब-like structure है जो कि जाके urinary bladder में जाके खुलती. It is a tube called ureters emerge and run downward. This one run downward to open in a urinary bladder. This is a urinary bladder and open it into the urinary bladder. And what is the function of ureter? It carry urine. इसका काम ये यूरिन लेके आता है from kidney. किडनी से यूरिन लेके आया into the urinary bladder. Urinary bladder क्या है? What is urinary bladder? It is a elastic muscular bag. ये बैग की तरह का एक शेप है इसकी. इसका काम ये है to store the urine. जो यूरेटर किडनी से यूरिन लेके आई, it will store in this urinary bladder. And when this bladder is filled with the urine, it allows the urine to pass in a urethra. जब ये पूरा भर जाए तो ये मस्कुलर बैग कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये पूरा यूरिन यूरिथेरा में चला जाता है. What is urethra? It is a tube for passageway of urine out of the body. यहाँ से यूरिथेरा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. Blood vessels. There are two blood vessels, renal artery and the renal vein. What is the function of the renal artery? Renal artery का क्या काम? Carry oxygenated blood to the kidney. ये oxygenated blood लेके जा रहा है किडनी की तरफ. और renal vein it carry deoxygenated blood away from the kidney. वो किडनी से deoxygenated blood लेके जा रही है. This is the main function of these two vessels. We again discuss this. There are two kidneys. They are dark brown in color. They have a bean shape. Kidneys are usually enclosed by a thick membrane which is called renal capsule. There is a tube-like structure. These are two tube-like structure which is called ureters. This is ureters is emerges from the kidneys and it will open into the urinary bladder. ये दो ureters tube-like structure है जो कि किडनी से निकली urinary bladder में जाके खुली. और इसका काम ये है to take urine from the kidney. किडनी से यूरिन लेके urinary bladder में ले. और urinary bladder क्या है? It is a muscular bag. जबकि urinary bladder filled with जब ये urinary bladder यूरिन से भर जाता है, what should be happen? It will pass the urine into urethra. यूरिन urethra में चला गया. और urethra क्या है? It is a tube. It is a passageway जहां से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. यहाँ पे दो किस्म की वेन्स थी, वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स थी. एक थी रेनल आर्टरी, दूसरी रेनल वेन. रेनल आर्टरी का क्या काम था? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी. और रेनल वेन का क्या काम था? इट टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी. वो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और रेनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी की तरफ लेके जाती है. दिस इज द ब्लड वेसल्स. Our next topic is longitudinal section of kidney. When we take the longitudinal section of the kidney, there is two regions, that is cortex and medulla. This is the longitudinal section of the kidney, and this is consists of two regions, that is cortex and medulla. This is medulla and this is cortex. Cortex is a dark outer red region. It is dark in color and it is in the outer side. Medulla is the inner side and is a thick region and it is lighter in color. हमने इसके longitudinal section किए. दो regions थे, एक cortex एक medulla. Cortex था वो dark था और outer regions पे पाया जा रहा है जिस cortex. Inner region पे और lighter in color को medulla. Medulla consists of 12 to 16 conical structure called renal pyramids. I am telling you about the renal pyramids. This is the renal pyramids. जो कि 12 to 16 conical structure. This one is 12 to 16 conical structures and this is called renal pyramids. 12 to 16. In the longitudinal section we see it
दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉनिकल स्ट्रक्चर, इसको कहा गया है रेनल पायरामिड्स। 12 to 16 ये पाए गए लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में, जिसे हमने रेनल पायरामिड का नाम दे दिया गया। और ये कहां से एक प्रोजेक्ट इनटू द दिस वन रीजन, एंड दिस वन रीजन इज कॉल्ड रेनल पैल्विक। इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिस वन रेनल पायरामिड प्रोजेक्ट इनटू दिस रीजन, ये यहां से यहां प्रोजेक्ट हुआ, और जो कि फनल लाइक शेप था, दिस वन इज अ फनल लाइक शेप, और इसको हमने कह दिया जी रेनल पैल्विक। दिस इज कॉल्ड रेनल पैल्विक, ये फनल लाइक शेप। 12 to 16, this one 12 to 16 are renal pyramids, जो के एक्सटेंड हो गए into the funnel like shape structure which is called renal pyramid। और ये जो renal pyramid था, it extend into ureters, यहाँ से जाके एक्सटेंड हुआ into the this one is a ureter, मतलब कि जाके ureter के साथ एक्सटेंड होके मिल गया। और इसको जो कि इसको हम दूसरी सेंस में ये भी कह सकते हैं that it is the expanded part of the ureter। ये जो पूरा पार्ट था रेनल पैल्विक वाला, इसको हम कह सकते हैं that it is the extended part of ureters। हमने इसमें दो तीन चीजें पढ़ी, हमने पढ़ा दो रीजन्स थे, एक कॉर्टेक्स था, एक मेडुला था। कॉर्टेक्स जो था वो डार्क था कलर, आउटर रेड रीजन्स में पाया गया। मेडुला जो था वो इनर थिक रीजन था। इस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में हमने इसके दो रीजन्स पढ़े, एक कॉर्टेक्स था, एक मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला डार्क था, कॉर्टेक्स डार्क आउटर रीजन में पाया गया, मेडुला इनर थिक रीजन था जो कि लाइटर इन कलर था। मेडुला के साथ 12 to 16 दिस वन 12 to 16 कॉनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन कॉनिकल स्ट्रक्चर्स को हमने कहा रेनल पायरामिड्स। अब ये जो रेनल पायरामिड्स थे इट प्रोजेक्ट इनटू, मतलब कि इसका यहाँ से कनेक्शन था इनटू अ लाइक स्पेस, फनल लाइक स्पेस, यहाँ पे एक फनल, ये पूरा इसमें एक इसके साथ इसकी एक्सटेंशन थी। उसके बाद ये जाके कहाँ पे एंड हुआ इनटू द यूरेटस, और इसको जब हम जाके इसको हमने रेनल पैल्विक का नाम दे दिया। When this renal pyramid project into the funnel like space, this is called renal pelvic, and thus this renal pelvic extend into the, where it extend into the ureters, और दूसरे सेंस में हम इसको ये कह सकते हैं renal pelvic जो है it is the expanded part of the ureters। Now we discuss the nephron, the unit of the kidney, that is nephron. Nephron is the structure and the functional unit of kidney, and there is about 1 million nephrons present in our kidneys. Nephron is the structure and the functional unit, and there is about 1 million nephron in the kidneys. Now we discuss the structure. It consists of three parts. Number one is Bowman's capsule, this one. Number two is glomerulus. Number three is the tubular portions. It consists of three parts: Bowman's capsules, glomerulus, and the tubular portions. Bowman capsule. What is Bowman? It consists of three parts: Bowman's capsules, glomerulus, and the tubular portion. Bowman's capsule. It is a double wall. This one is a double wall. It is a double wall, and it surrounds the glomerulus. This one is a glomerulus, and it surrounds the glomerulus. Bowman's capsule is a double wall, and it surrounds the glomerulus. Now next one is glomerulus. It is tuft of capillaries, गुच्छा नुमा capillaries का. This is called glomerulus. Or how it is formed? Renal artery first divides into the large number of arterioles and capillaries. Renal artery divide होती है. It divides it into the arterioles and the capillaries. किसमें डिवाइड होगी? आर्टरियोल्स में और कैपिलरीज में, और इन कैपिलरीज को टफ्ट ऑफ द कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब सबसे पहले ब्लड क्या करेगा? इट लीव द ग्लोमेरुलस, यहां से लीव करेगा, एंड देन इट इंटर इनटू द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस से निकल के ब्लड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा। दिस इज द ग्लोमेरुलस। थर्ड वन पोर्शन इज ट्यूबुलर पोर्शन. There are three tubular portions. First, convoluted tubules, which is called proximal. Next one is U-shaped, and the third one is last convoluted tubules, which is called distal part.
First convoluted tubules. It usually this one is the first convoluted tubule, and it is a short. First one, it starts from the Bowman's and it is a short coil. There is a short coil in it. This is called first convoluted tubule. Next one is U-shaped portion, which is in the medulla, and this is also called loop of Henle. U-shaped. It is a portion in the medulla and it is called loop of Henle. Third one is the last part, which is called distal part. This is tubule pass back to the cortex. This one is back. This is a U shape, and from this U shape it back into the cortex and coil again. वहाँ पे जाके एक दफा दोबारा coil होता है, and this is called last convoluted part. ये तीन parts है tubular portion के. First U shape and the last, और इसके बाद proximal U shape और the distal part. सबसे पहले first जो था, start into the first short coil. This is the first short coil. This is the first one, short coil after Bowman's capsule, and this is called first U shape. It is in the medulla. This is called loop of Henle, and the last one is the last part, which passes back. This is in the cortex region and coil it again, and is formed the last convoluted part. और ये जो last convoluted part था, it will open into the collecting duct. इसके बाद ये कहाँ जाके खुलेगा? Into the collecting duct. जो last part था tubule का, it will open into the collecting duct. Assalamualaikum students. Today we discuss the another topic, that is formation of urine. सबसे पहले क्या हुआ कि blood travel around the body. पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता है. उसकी ट्रैवलिंग से ये होता है कि वो क्या कलेक्ट कर रहा है? वेस्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन. ब्लड ट्रैवल अराउंड द बॉडी एंड इट कलेक्ट वेस्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन. अब जो वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन की फॉर्म में वेस्ट रिमूव हो रहा है, और यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, 3 बेसिक स्टेप्स हैं. नंबर 1 इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 इज ट्यूबुलर सिक्रीशन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को. इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो कहां से मूव करेंगे? ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल. ये सारी चीजें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनियस वेस्ट कहां से मूव हुए? ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में. इस फिल्टर सब्सटेंसेस को हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. पूरी बॉडी में ब्लड जब मूव करता है वो क्या कलेक्ट करे? इट कलेक्ट वेस्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया. हमारी बॉडी से वेस्ट जो रिमूव हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन है. इसकी यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स थे: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में सबसे पहले ये वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमैन्स कैप्सूल. सबसे पहले स्टेप में ये हुआ. अब जो चीज मूव कर गई ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल को, उस सब्सटेंसेस को हमने कह दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकंड है हमारा स्टेप ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. इसमें क्या हुआ कि जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था ये पास में टू ट्यूबुलर पोर्शन. ट्यूबुलर पोर्शंस के 3 पार्ट थे. फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, सेकंड यू शेप पढ़ा, और थर्ड वन जो था वो लास्ट कॉइल पार्ट था. अब जब हम लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो पास में ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में. इधर क्या हुआ? सबसे पहले ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, साल्ट, जो पहला पार्ट था प्रोक्सिमल पार्ट या फर्स्ट कॉइल पार्ट जो था वो पास में जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में. ये सारी चीजें जो कि ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट था वो फर्स्ट पार्ट में गया इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में. और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या चीज थी? जिन्होंने किसको श्रम किया हुआ? लूप ऑफ हेनले, मीन जो यू शेप था उसको उन्होंने लूप ऑफ हेनले को उसने श्रम किया. ये कैपिलरीज हैं जिन्होंने श्रम किया अबाउट द लूप ऑफ हेनले. अब जो सब्सटेंसेस है जो रीअब्सॉर्ब हो गए उसको हम कहेंगे ट्यूबुलर फ्लूइड, जो कि इंटर हुआ लूप ऑफ हेनले, मीन सेकंड पार्ट, मीन यू शेप जो था लूप, उसको हमने कह दिया लूप ऑफ हेनले में वो पास हो गया. हमने क्या पढ़ा इसमें? ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो पास हुआ ट्यूबुलर पोर्शन. 3 ट्यूबुलर पोर्शन थे. फर्स्ट कॉइल पार्ट, सेकंड वन यू शेप, थर्ड वन लास्ट कॉइल पार्ट.
यू शेप को हमने लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। अब जो ग्लूकोज वाटर और अमाइनो एसिड साल्ट का जो फर्स्ट कॉइल पार्ट था उससे पास हो गए इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये सारी चीजें पास हुई फर्स्ट कॉइल पार्ट टू पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वन जो वो कैपिलरीज हैं विच सराउंड्स लूप ऑफ हेनले मीन यू शेप। अब वो सब्सटेंसेस दैट आर रीअब्सॉर्ब, जो अब यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होगी उससे हम कहेंगे अब ट्यूबुलर फ्लूइड, जो कि कहाँ इंटर हो गए लूप ऑफ हेनले मीन सेकंड पार्ट यू शेप। ट्यूबुलर सिक्रीशन में थर्ड वन टाइप है, स्टेप है इसका, जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कह रहे हैं। इसमें ये हुआ कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में कुछ मॉलिक्यूल्स फ्री हुए जो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी इनटू द लास्ट कॉइल पार्ट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स कहां से निकले पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से निकल के लास्ट कॉइल पार्ट में चले गए। अब वो जो चीजें रह गई पीछे वो सिर्फ क्या था, इट इज जस्ट यूरिया, वेस्ट सॉल्ट और कुछ इंडिजॉल्व अमोनिया। ये सारी चीजें वाटर में डिजॉल्व थी जिसे हमने यूरिन का नाम दिया। हमने लास्ट ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हुआ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो मॉलिक्यूल्स थे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से निकले वो कहां चले गए लास्ट कॉइल पार्ट में डिस्टल वाले। जब वो वहां पे गए तो वो चीज क्या थी हमारे पास लेफ्ट, तो आखिर में चीज रही वो जस्ट यूरिया था, कुछ वेस्ट सॉल्ट थे जो कि डिजॉल्व थे इन वाटर, उसको हमने यूरिन का नाम दिया। Our next topic is malfunctioning of kidneys. Malfunction means work or functions imperfectly. When function is not functioning, when the functioning of any organ is not performed perfectly, that is called malfunctioning. There are several kidney diseases like diabetes, high blood pressure, hardening of the arteries. These are the kidney diseases, which are diabetes, high blood pressure, hardening of the arteries, which damage blood vessels of kidney. ये वो डिजीजेस है जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। वो कौन कौन डिजीजेस हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज और कुछ ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाती है हमारी किडनीज की। अब जो पार्ट जो इन्फेक्टेड होते हैं ड्यू टू दिस आर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथेरा, ग्लोमेरुलस डैमेज। ये सारी चीजें जो है हमारी किडनी में, ये किडनी डैमेज हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर डैमेज, यूरिथेरा डैमेज हो जाएगा, ये इन्फेक्टेड पार्ट है। जब हमारी किडनी इन्फेक्शन इनकी डैमेज की वजह से हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट इज किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स किसी भी ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे, यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में वो डेवलप हो सकते हैं, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट और रेनल पेल्विक, इन दोनों में भी ये किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाएंगे। अब किडनी स्टोन्स जो है वो किस चीज के बने हुए, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड यूरिक एसिड। इन दो चीजों से, कैल्शियम साल्ट और यूरिक एसिड से किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। हमने क्या पढ़ा कि किडनी डिजीजेस कौन कौन सी हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड इट मे डैमेज सम ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनीज। इन्फेक्टेड पार्ट में बी किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथेरा एंड ग्लोमेरुलस डैमेज। किडनी स्टोन्स आर डेवलप इन एनी ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, दे मे बी डेवलप इन collecting duct or renal pelvic. Kidney stones usually consist of calcium salts and the uric acid. What are the major causes of kidney stones? Kidney stones हमारी बॉडी के अंदर बनते कैसे? How it is formed in our body? Ingestion of excess mineral, when we take excess minerals or salts, या फिर decrease water intake, पानी कम पी रहे हो, या overactivity of parathyroid glands. When they are parathyroid glands overactivity कर रहे हो, that they causes of kidney stones. How we can cure the kidneys? There is a process that is called dialysis. Patients are usually can be treated with a dialysis or kidney machine. सबसे पहले क्या होगा, टबिंग इज बाथ इन स्पेशल कंट्रोल डायलिसिस फ्लूइड। टबिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक डायलिसिस फ्लूइड। अब क्या होगा, सबसे पहले वॉल ऑफ द टबिंग इज परमिएबल, उसकी जो टबिंग वॉल है इट इज परमिएबल, मींस दे अलाउ सम मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल इसमें से पास होंगे। अब वो कौन कौन से पास हो रहे हैं, कुछ यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि डिफ्यूज आउट ऑफ द टबिंग। इसकी वॉल क्या थी, परमिएबल थी। अब वो क्या कर रही थी, कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से पास हो रहे थे, वो कौन कौन से थे, यूरिया थे, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि डिफ्यूज आउट ऑफ द टबिंग, टबिंग से बाहर निकल के और वो कहां गए, इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड में ये चीज चली गई, कौन सी, यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स।
अब नेक्स्ट वन क्या होगा, जो बिग मॉलिक्यूल्स थे प्रोटीन और ब्लड सेल्स वो टबिंग में रह जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूरिया बाहर निकल गया, कहाँ चला गया, डायलिसिस फ्लूइड में, और जो बिग मॉलिक्यूल्स थे जो कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स थे वो टबिंग में रहे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। इसमें सिर्फ दो ही चीजें थी, एक क्या था कि टबिंग था और उसका डायलिसिस फ्लूइड था। टबिंग की जो वॉल थी वो परमिएबल थी, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो रहे थे। जो पास होने वाले थे वो कौन कौन से थे, यूरिया था, वेस्ट प्रोडक्ट था, जो क्या हुआ टबिंग से बाहर निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चले गए, और जो बिग मॉलिक्यूल्स थे जो कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स थे वो टबिंग में रहे। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या करें, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। अब जो पेशेंट की जो किडनी है उसकी जो डिफरेंट डिजीजेस होंगी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल और किडनी ट्रांसप्लांट से भी हम किडनी को हम लोग उसकी डिसीजेस को कर सकते हैं। कुछ और टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करते हुए पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। Hemodialysis. Patient with kidney disease can be treated with the hemodialysis or peritoneal dialysis and the kidney transplant. First one we discuss the hemodialysis. In this process, first of all, catheter inserted into a vein. कैथेटर को इंसर्ट किया जाएगा वेन जो कि आर्म में जो हमारी वेन है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका प्रोसेस भी वही है जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस डायलिसिस को डिस्कस किया। इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो इनटू द ट्यूब मीन मशीन द डायलाइजर। ये डायलाइजर है, इसके अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करेगा थ्रू दिस आर्म। इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट किया कैथेटर को। अब उसके बाद जो डायलाइजर के अंदर हमारा ये ब्लड चला। इनसाइड मशीन ब्लड इज पंप्ड ओवर डायलिसिस मशीन। अब मशीन क्या करेगी, इस ब्लड को पंप करेगी। इसको ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ब्लड आया जैसे ही इसने इसको पंप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो पंप करेगी उसके बाद ये होगा कि सेपरेट पेशेंट ब्लड फ्रॉम द डायलिसिस। अब इसकी पंप की वजह से पेशेंट का ब्लड जो है डायलिसिस फ्लूइड से सेपरेट हो जाएगा, जिसको हमने डायलिसिस का नाम दे दिया। अब जो यूरिया जो होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट है, यूरिया है, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ये डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस डायलिसिस फ्लूइड में वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए डायलिसिस फ्लूइड, वेस्ट सारा डायलिसिस फ्लूइड में चला गया। इसमें भी वही हुआ कि यूरिया और वेस्ट सारा डायलिसिस फ्लूइड में चला गया, और जो शुगर और सॉल्ट जो थी वो डिफ्यूज अक्रॉस द फ्लूइड, वो उसके अंदर, ये जो शुगर और सॉल्ट होगी वो इसके अंदर मेम्ब्रेन को पास करके इसके अंदर नहीं आएगी, बल्कि जस्ट ओनली वेस्ट इसके अंदर आएगा। यूरिया एंड वेस्ट पास ऑन डायलिसिस फ्लूइड, यहां आ गया डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। अब जो पेशेंट का क्लीन ब्लड है वो दोबारा से वेन की आर्म के अंदर, वेन जो हमारी आर्म वेन है आर्म के अंदर, उससे पास होता हुआ दोबारा वापस चला जाएगा दूसरी इस साइड से। क्लीन ब्लड यहां से वापस जा रहा है। फ्रेश डायलिसिस, अब जो ये फ्रेश डायलिसिस है ये दोबारा इसके अंदर हम लोग इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इंटर द मशीन फ्रॉम वन एंड, इस एंड से हम लोग फ्रेश डायलिसिस डाल रहे हैं इसके अंदर, और यूज डायलिसिस लीव द मशीन, और ये यूज वाला ये है जो कि हम इसको बाद में दूसरे एंड से इसको निकाल सकते हैं। हमने इस प्रोसेस में क्या पढ़ा, हेमोडायलिसिस में सबसे पहले कैथेटर हम लोगों ने इंसर्ट किया, किसमें, वेन के अंदर, जो कि हमारे आर्म के अंदर जो वेन थी उसके अंदर हम लोगों ने इसको इंसर्ट किया। अब ब्लड फ्लो इन द ट्यूब मशीन, अब ब्लड हमारा पूरा डायलिसिस के अंदर चला गया। उसके बाद इसने पंपिंग स्टार्ट की। पंप की वजह से क्या हुआ कि वो पेशेंट का ब्लड जो है वो डायलिसिस फ्लूइड से सेपरेट हो गया। अब जो यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स था वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ इसमें आ गया, फ्लूइड में आ गया, डायलिसिस फ्लूइड में आ गया। और जो शुगर और सॉल्ट जो है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो इसके अंदर डिफ्यूज नहीं हुआ, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया उसने। यूरिया वेस्ट जो है उस फ्लूइड के अंदर आने के बाद क्या होगा, जो पेशेंट का साफ खून होगा, क्लीन ब्लड जो होगा वो वापस बैक हो जाएगा इनटू द वेन ऑफ द आर्म, ठीक है। और हम लोग फ्रेश डायलिसिस जो है वो इधर से इंटर कर सकते हैं, और जो वेस्ट जो वेस्ट डायलिसिस था उसको हम दूसरे एंड से रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दिस केस कैथेटर इज इंसर्टेड इन एब्डोमेन। इसमें कैथेटर जो है इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन में, और पेरिटोनियम जो है वो एक लेयर है जो कि यूज एज अ डायलिसिंग मेम्ब्रेन। और आपसे पूछे व्हाट इज पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम क्या है, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन और लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन। ये लाइनिंग है, थिन मेम्ब्रेन है एब्डोमेन, और ये पेरिटोनियम यूज हो रही है एज अ डायलिसिंग मेम्ब्रेन।
इसमें भी सेम प्रोसीजर जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा कि इसमें भी डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया जाएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पायलट ट्यूब। इसमें भी एक्सचेंज टेक प्लेस होगी बिटवीन डायलिसिस फ्लूइड, मीन के वेस्ट जो है वो सारा डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्रोटीन वगैरह थी और कोई जो इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है दोबारा टिश्यू फ्लूइड्स में चले जाएंगे। अब उसके बाद ये जो फ्लूइड जो अगर डायलिसिस फ्लूइड है इसको हम लोगों ने कम से कम रेगुलरली 3 और 4 टाइम्स डे में इसको रिप्लेस करना है। इसका प्रोसेस सेम है जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा। इसमें क्या था, इसमें कैथेटर जैसे इंसर्ट हुआ एब्डोमेन में, इसमें पेरिटोनियम यूज हुआ एज अ डायलिसिस मेम्ब्रेन। इसके बाद डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया जाएगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और उसके अंदर एक्सचेंज टेक प्लेस, मीन के वेस्ट जो है वो सारा एब्डोमिनल में ये डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा, और इस फ्लूइड जो डायलिसिस फ्लूइड हो कम से कम 3 या 4 दफ़ा हम लोगों ने रिप्लेस करना है दिन में। थर्ड प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट उस वक्त होगी जब 90% ऑफ किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, और इसके अंदर जो है टिश्यू ऑफ डोनर एंड पेशेंट टेस्टेड फॉर मैचिंग। इन डोनर और एक्सेप्टेंस का जो है वो मैच करना लाजमी है इसमें। ओल्ड किडनी जो है वो आर लेफ्ट इन देयर प्लेस एंड दे डू नॉट हार्म, उसको उधर ही ओल्ड किडनी को जो है वो उधर ही रख देते हैं बिकॉज दे डू नॉट हार्म, और न्यू किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है इन द लोअर एब्डोमेन। अब जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे टू द ब्लड वेसल्स। हम लोगों ने ट्रांसप्लांटेड किडनी को ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट देंगे ताकि उसके अंदर जो है वो दोबारा से ब्लड फ्लो करे, और ब्लड फ्लो के साथ साथ ये होगा इट विल बिगिन रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और उसके बाद क्या होगा कि वो जितना भी वेस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा वो ब्लड के थ्रू जो है वो रिमूव हो सकता है। दिस इज द 3 मेथड्स बाय विच किडनीज वी कैन क्योर द प्रॉब्लम्स ऑफ द किडनीज। हम लोगों ने तीनों प्रोसेस पढ़ लिए, एक था हेमोडायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मैंने हर टॉपिक के एंड पे असेसमेंट्स बनाई हुई हैं, आप लोग इस वेबसाइट पे विजिट करें और देखेंगे वो असेसमेंट जो मैंने दी है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट करके दोबारा से इस वेबसाइट पे मुझे भेजें। थैंक यू सो मच।